Hello everyone, welcome to the new video of the chapter Government Budget. Now in the previous videos of government budget, we have talked about what is government budget, what are the components of government budget, and third important thing, the three deficits the government budget has. Now in the final video of government budget today, we'll be talking about the objectives of government budget. What is the need for government budget? क्यों चाहिए government budget? So these are the listed objectives of government budget. Reallocation of resources, reducing income and wealth inequality, economic stability, managing PSUs, economic growth, and reducing regional disparities. Now, in today's video, we'll be discussing these things in detail. So, let us see the objectives of government budget in detail. Coming to the first one, that is called reallocation of resources. Now, what does reallocation of resources mean? It means that हमें अपने resources को बांटना है, distribute करना है in the most efficient manner. ठीक है, अब कहीं रिसोर्स ज़्यादा चाहिए, कहीं कम चाहिए, कौन डिसाइड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्री. In some countries, main priority is defense. In some countries, main priority is social welfare. So it depends on the country's priority to which use will they put their resource to. For example, there are various countries where defense is the most important priority. So they put their money and all the resources into defense. Whereas country like India, our main priority is social priorities, employment, poverty eradication. So we put more money in these areas. So it depends on what is your economic and social priority. Depending on that, every country reallocates their resources every year. हर साल हम जहाँ जहाँ हो सके वहाँ रीएलोकेट करते हैं. अब 3 तरीके हैं रीएलोकेट करने के. पहला है प्रोवाइडिंग टैक्स कंसेशन. जिन लोगों, अगर हमें चाहिए कि भाई लोग जो हैं वो ज़्यादा जाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की तरफ, या ज़्यादा जाएं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ, सो वी विल गिव देम टैक्स कंसेशन. जैसे आपने सुना है सुकन्या योजना के बारे में. सुकन्या योजना क्या कहती है? वो ये कहती है दैट एनीबडी हु हैज़ अ गर्ल चाइल्ड कैन ओपन एन अकाउंट एंड आफ्टर द गर्ल चाइल्ड टर्न्स 18 ईयर्स द पेरेंट्स विल गेट सम मनी. तो इसका मतलब क्या है? लोग बेटियां नहीं मारेंगे, उनको पढ़ाएंगे ताकि उनको अलाउंसेस मिले. तो गवर्नमेंट ने क्या किया? टैक्स कंसेशन दिया. इसका हमारे इनकम टैक्स रिटर्न में भी हमें फ़ायदा मिलता है. दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ टैक्स कंसेशन. सब्सिडीज़, गवर्नमेंट बहुत बार सब्सिडी प्रोवाइड करती है. अगर गवर्नमेंट को रीएलोकेट करनी है रिसोर्सेज, वो चाहती है कि हम लोग सब्सिडी देती है गवर्नमेंट एलपीजी पे. गवर्नमेंट ने अभी सब्सिडी देना शुरू किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, ताकि हम लोग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रहें. तो सब्सिडीज़. थर्ड है डेवलपिंग और प्रोड्यूसिंग गुड्स डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल गुड्स लाइक सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइटिंग. गवर्नमेंट नो उसकी सोशल वेलफेयर का सामान है. प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन दिस. देयरफॉर गवर्नमेंट डायरेक्टली इनको प्रोड्यूस करती है ताकि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके. तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिस्ट्रीब्यूटिंग और रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द रिसोर्सेज डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्री. Coming to next one we have is reducing income and wealth inequalities. Now income and wealth inequality का मतलब होता है, हम जिसे कहते हैं ना कि अमीर और गरीब में भेदभाव कम करना, उसे हम कहते हैं reducing income and wealth inequalities. Now how can government reduce the gap between the rich and the poor? बहुत सिंपल है, by charging the rich and by providing subsidies to the poor. So what does government do? Government will impose taxes on the rich and will spend more money on the welfare of the poor. गवर्नमेंट जो है हायर क्लास का इनकम टैक्स बढ़ा देगी और जो लोअर क्लास है उनका इनकम टैक्स ख़त्म कर देगी. गवर्नमेंट लोअर क्लास को उज्ज्वला योजना के अंडर ज़्यादा सब्सिडी देगी, है ना, वेराज रिच को नहीं देगी. ये सब क्या है? ये सब है रिड्यूसिंग इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी. थर्ड पॉइंट वी हैव इज मैनेजिंग PSUs, हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. नाउ व्हाट इज़ दिस? नाउ गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें ओन करती है. गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं, डिपार्टमेंटल टेकिंग है. फॉर एग्जांपल BSNL, MTNL, BHEL, पावर ग्रिड, NTPC, ये सब गवर्नमेंट के हैं. ठीक है, तो गवर्नमेंट को इनको भी मैनेज करना होता है. गवर्नमेंट इनके प्रॉफिट्स लेती है, इनके एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है, तो गवर्नमेंट को इन सबको मैनेज करना है, इनको फाइनेंशियल हेल्प देनी है. तो ये भी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि इनको कितना पैसा जाएगा और कितना इनसे पैसा लिया जाएगा. नेक्स्ट वी हैव इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है व्हेन देयर इज नो फ्लक्चुएशंस और एब्सेंस ऑफ फ्लक्चुएशंस इन प्राइजेस
ऐसा नहीं है कि जनवरी में जी प्याज का प्राइस चल रहा था 10 रुपये किलो और मई आते आते वो हो गया 200 रुपये किलो और फिर जुलाई में आते आते फिर से आ गया 5 रुपये किलो। ये तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, ऐसा ना हो। गवर्नमेंट हैज़ टू मेंटेन दैट, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैसे मेंटेन करेगी? अब दो टाइप की फोर्सेस होती हैं, एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, ठीक है। जब प्राइसेस ऊपर जाते हैं, प्राइसेस ऊपर क्यों जाते हैं? सिंपल सा रीज़न होता है क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। सो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। यहाँ पे मैंने ADAS लिखा है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे बाद में, AD क्या होता है, AS क्या होता है, बट फॉर राइट नाउ यू कैन थिंक अबाउट एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एज डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइसेस तो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस टाइम पे क्या करती है? गवर्नमेंट इस टाइम पे अपनी स्पेंडिंग खत्म कर देती है। गवर्नमेंट रिड्यूसेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट कहाँ खर्चा करती है? गवर्नमेंट सैलरी देती है। अब सैलरी तो ख़त्म नहीं कर सकती ना, लेकिन गवर्नमेंट तब ये कर सकती है कि गवर्नमेंट अननेसेसरी का खर्चा ना करे, जो नॉन डेवलपमेंटल खर्चा है ना वो ना करे। जैसे कि गवर्नमेंट कभी कभार सब्सिडीज़ दे देती है, गवर्नमेंट वो ना दे, ठीक है। तो इससे क्या होगा? अपने आप डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। एंड वाइसा वर्सा विल हैपन इन द डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी सिचुएशन में क्या होगा? प्राइसेस इसका मतलब कम है, डिमांड कम है, तो गवर्नमेंट खर्चे बढ़ा दे अपने। जब गवर्नमेंट बढ़ाएगी खर्चे तो गवर्नमेंट सैलरी देगी लोगों को, सैलरी देगी एक्स्ट्रा, तो लोग जाके खरीदेंगे, डिमांड करेंगे। ओके, देन कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन दी GDP और इंक्रीज इन दी आउटपुट, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैसे GDP और आउटपुट इंक्रीज करेगी? गवर्नमेंट जो है टैक्स हॉलीडेज, टैक्स रिबेट्स देती है ना, कंसेशंस देती है, इंसेंटिव्स देती है, ताकि लोग और प्रोड्यूस कर सकें। फॉर एग्जांपल अभी गवर्नमेंट ने वो आत्मनिर्भर योजना निकाली, उसमें क्या था कि लोग और प्रोडक्शन कर सकें। तो इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड लास्ट इन गवर्नमेंट बजट वी हैव इज रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब होता है गवर्नमेंट वांट्स दैट ऑल द एरियाज इन द कंट्री शुड डेवलप। ये नहीं होना चाहिए खाली एक जगह डेवलप हुई दूसरी जगह डेवलप नहीं हुई। सो ऑल सिटीज़, ऑल स्टेट्स शुड डेवलप। तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दिस हैपन्स, गवर्नमेंट क्या करती है? बैकवर्ड एरियाज़ में इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए इंसेंटिव्स देती है। गवर्नमेंट मेक श्योर कि इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह हर एरिया में पहुँचे। तो उससे क्या होता है? रीजनल डिस्पैरिटीज़ कम हो जाती हैं। सो दिस इज़ योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।